Hello friends and welcome to the video class of social studies subject. So right now I am making a video class. I am not going for the Google Meet live class, because I wanted my lecture to reach as many people as can. ठीक है, because during the live class not all the students were able to join the live class. That's why I have decided to go for the video classes. Okay, but that doesn't mean I will not take any of the live classes. Whenever there is a situation where I feel like there is a necessity of taking the live class, I will also take the live class. Okay, so no need to worry about that. And if there is a video class for you guys, there is one advantage, and that advantage is you can watch the video anytime you want. Okay, it is kind of a digital library, video library for you guys. Okay, so in the last class of economics we were reading about poverty as a challenge. हम लोग poverty as a challenge रीड कर रहे थे, और poverty as a challenge को हमने क्वेश्चन आंसर से लेकर with the help of the question answers we started reading poverty as a challenge. Okay, so let's move on to the question answers directly. Okay, so that we can continue the further topics in this chapter. So let's first see what we have discussed in the previous class. So in the previous class we have discussed about the poverty line and how the poverty line is estimated in India. Then we have discussed about the present methodology of poverty estimation, and we have read whether that estimation, the methodology is appropriate or not. Okay, in the third question we have discussed about the poverty trends which were prevalent in India since 1973. Then we have discussed about the major reasons for poverty in India. What are the major reasons which were there for the poverty in India? And then we have identified the social and economic groups which are most vulnerable to poverty. ठीक है, हम लोग ये 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था. अब इस क्लास में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन में और डिस्कशन कराऊंगा. 9th वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क, ये आपको खुद से करना है. और इसके बाद मेरा जो ग्रुप में पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर है उसमें आप मैसेज करेंगे लिख कर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. So the question number 6, it says give an account of interstate disparities of poverty in India. तो इसमें हम लोग को क्या बताना है कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है इंडियन पॉवर्टी में, जो इंडिया में जो पॉवर्टी प्रिवलेंट है और उसमें जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब किसी एक स्टेट में ज़्यादा पुअर लोग हैं, किसी एक स्टेट में कम है. पॉवर्टी का डेफिनेशन अलग अलग है हर स्टेट में. जैसे कि किसी एक स्टेट के लिए कोई चीज़ जरूरी हो सकती है, वहाँ के लोग बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी उन लोग पॉवर्टी के अंदर आ सकते हैं. जैसे कि कुछ ज़्यादा पुअर स्टेट्स हमारे इंडिया में, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पाता है लोगों का. वेयर एज इन सम अदर स्टेट्स विच आर डेवलप्ड लाइक द स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया, केरला, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, these are comparatively developed states, and there the poverty is not the basic requirement but something more than the basic requirement, like good housing, okay, good health care at the secondary and tertiary level. health care I am talking about, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर तो उनका अच्छा है, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट्स का
वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हाई लेवल पे अगर किसी को मेडिकल केयर एफर्ट कराना है तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा उनको दिक्कत होता होगा, है ना। तो ये जो पावर्टी का डिस्पैरिटी है अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। ठीक है, जो पुअर लोगों का प्रपोर्शन है इंडिया में वो सेम नहीं है हर स्टेट में। ऑल्दो दी स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस्ड अ डिक्लाइन, मतलब कि जो स्टेट लेवल का जो पॉवर्टी का ट्रेंड रहा है, तो 1970s के बाद से हमने ऑल ओवर इंडिया में देखा था कि जो पॉवर्टी का रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट में भी डिक्लाइन होगा, पर कहीं कम, कहीं पे ठीक ठाक डिक्लाइन होगा, कहीं पे धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, कहीं पे डिक्लाइन का जो रेट है वो फास्ट है। ठीक है, फॉर फ्रॉम द अर्ली लेवल्स ऑफ 70s, मतलब फ्रॉम द अर्ली लेवल ऑफ 70s देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द poverty at the state level, and at the all India level also there was a decline. However, the success rate in the reduction of poverty varies from state to state। मतलब जो पॉवर्टी का रिडक्शन हो रहा है एक स्टेट में, मैंने बताया कहीं पे जहां पे अच्छा खासा डेवलपमेंट है वहां पे पॉवर्टी का रिडक्शन जल्दी होगा या उसका रेट फास्ट होगा, लेकिन कहीं पे जहां पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर तरीके से जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी का जो रिडक्शन है वहां पे धीरे धीरे होगा। तो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो, अब ये हेड काउंट रेशियो क्या है ये हमको समझना जरूरी है। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, एक हेड काउंट रेशियो होता है वो बोलते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे जो हेड काउंट रेशियो है 2011-12 के अकॉर्डिंग, मतलब 2011-12 के हिसाब से कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे, तो ये है 21.9%। 21.9% एक एस्टिमेटेड आपका फिगर है। आउट ऑफ टोटल 21.9% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल्स, मतलब कि इन स्टेट्स का जो पॉवर्टी लेवल है, मध्य प्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार और उड़ीसा, इनका जो पॉवर्टी लेवल है ना ये ज़्यादा है ऑल इंडिया लेवल से। मतलब कि ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से अगर देखें तो अगर 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं तो इसमें ज़्यादा है, ये परसेंटेज ज़्यादा। अब ये परसेंटेज कितना ज़्यादा है ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक ग्राफ है यहाँ पे, ये देखिए, ये ग्राफ देखो, ऑल ओवर इंडिया लेवल का कितना है 21.9%। ये 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन अगर देखो मध्य प्रदेश का देखें तो 31.7, बिहार का देखें तो 33.7, ओडिशा का देखें तो 32.6। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हो गए जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पावर्टी रेशियो ऑल इंडिया लेवल से भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे देखिए पावर्टी का जो ट्रेंड है ये कम होते जा रहा है, धीरे धीरे होते जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, केरला में देखिए सबसे कम दिखेगा आपको पावर्टी रेशियो 7.1%। तो केरला में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो मैं भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि किस प्रकार से केरला स्टेट में जो पावर्टी रेशियो को कम किया है उन्होंने, क्या मेथड्स उन्होंने अपनाए हैं, कुछ स्टेट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस आंसर में। ठीक है,
Along with the rural poverty, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. तो रूरल पावर्टी मतलब कि इन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन स्टेट्स में पावर्टी सिर्फ रूरल इलाके मतलब गांव के इलाकों तक ही सीमित नहीं, उसके अलावा वहां से निकलकर पावर्टी अर्बन लेवल्स पे भी मतलब शहरी जगहों पर भी पावर्टी देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, इट इज नॉट ओनली अ रूरल फिनोमिना बट ऑल्सो एन अर्बन फिनोमिना. इन कंपैरिजन देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी इन केरला. मैं बताया केरला में कम है, अभी हमने देखा कितना है, 7.1% है. उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे पावर्टी रेशियो कंपैरेटिवली इन स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है, इन स्टेट्स में ज़्यादा है. तो ये डिस्पैरिटी दिखने के लिए मिल रहा है ना, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, यही होता है डिस्पैरिटी. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rate. पंजाब और हरियाणा जो है, these are the states where the agricultural growth is high. एग्रीकल्चरल ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ. और एग्रीकल्चरल ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण जो रूरल लेवल पे पावर्टी है वो कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रूरल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छा होने के कारण उनकी इनकम अच्छी, और इनकम अच्छी तो पावर्टी कम. ठीक है, और अगर गांव से लोग अगर सही में उनको अगर अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनका अगर एग्रीकल्चर का काम अच्छा चल रहा है, तो क्या वो शहर जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे. गांव में सही काम नहीं मिल रहा है, पावर्टी, इसलिए तो लोग काम के तलाश में शहर जाते हैं. शहर में भी अगर काम नहीं मिल पाता तो वो अर्बन पावर्टी में कंट्रीब्यूट करेंगे वहां पे. लेकिन क्योंकि पंजाब और हरियाणा के केस में हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, किसान एग्रीकल्चर करना पसंद करते हैं वहां, और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ग्रोथ अगर अच्छा खासा है तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज की पावर्टी भी कम रहेगी. ठीक है, उसके बाद केरला के बारे में देखते हैं. ये तो पंजाब का ना, मैं हर स्टेट का धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूं. केरला फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे स्टोरी ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर में, सॉरी नहीं, मतलब एक और चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद वाला ह्यूमन रिसोर्स का अलग से चैप्टर था, उसमें पढ़े थे. तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मैंने बताया था ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक होता है हेल्थ और दूसरा होता है एजुकेशन. आप देख लीजिए उठा के इंडिया का स्टैटिस्टिक्स, केरला इज वन ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स इन एजुकेशन. एजुकेशन के मामले में टॉप स्टेट्स के अंदर गिनती होता है केरला का. और एजुकेशन अच्छा होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब्स अवेलेबल हैं. और एक बात और बता दूं आपको, केरला इज वन ऑफ द स्टेट वेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अब्रॉड. मतलब कि इंडिया के बाहर भी सबसे ज्यादा जो लोग नौकरी करने जाते हैं इंडियन सिटीजन्स, उसमें से एक लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जो चंक है वो केरलाइट्स का है. तो उनको क्यों बाहर में आसानी से जॉब मिल जाता है? क्यों? उनका एजुकेशन अच्छा है. दे हैव क्वालिटी एजुकेशन एट देयर हैंड्स, दैट्स व्हाई दे गेट जॉब easily and they are earning good, and that's why the level of poverty in Kerala is less. वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर्स बहुत अच्छे से लिए गए. मैंने बताया था इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉवर्टी का कारण है कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है रिसोर्सेस का. और वेस्ट बंगाल हैज बीन द सेंटर ऑफ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द कंट्री. जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मूवमेंट हुए हैं, सोशल मूवमेंट,
उसमें वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स। वहां पे लोग बहुत ज्यादा जागृत रहे अपने लैंड राइट्स को लेकर। लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेस्ट बंगाल में, और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण लोगों के पास जमीन है, वहां पे वो खेती कर सकते हैं, वहां पे चाहे तो वो कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री लगा सकते हैं, है ना। लैंड रहने का एक बहुत बड़ा फायदा है लोगों के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल में लोगों के पास लैंड रहने के कारण वहां पे पॉवर्टी कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अभी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पॉवर्टी इसलिए कम है क्योंकि यहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है फूड ग्रेन्स का। मतलब कि जो भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने के बाद जो वो आता है गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको वो सब्सिडाइज दामों में, मतलब कम दामों में लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वन ऑफ द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री। 3 रुपए किलो चावल, ठीक है, 5 रुपए किलो ऐसा मिलता है ना। सब्सिडाइज रेट पे लोगों को खाना मिल रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो रहा है उनका, है ना। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के स्टेट्स है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का ही नहीं, हेल्थ का भी अच्छा है। हेल्थ पे भी लोगों के बहुत अच्छा काम किया गया, उनको सब्सिडाइज लेवल पे ट्रीटमेंट कराया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, है ना। एजुकेशन का लेवल आपको अच्छा मिलेगा साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये सब रीजंस है जिसके कारण हमारे जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे पॉवर्टी आपको कम देखने के मिलेगा कंपेरेटिवली टू सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रिसोर्स होने के कारण के उसके बाद भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो। दैट्स वाई वी आर among the poorest states in the country. Okay, so this is question number 6 in which I have discussed about the disparities, क्यों अलग अलग है, मतलब ये डिस्पैरिटी होता क्या है, कहीं पे पॉवर्टी ज़्यादा, कहीं पे पॉवर्टी कम। तो आपको ये बात याद रखना है कि केरला में कम है तो क्यों है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में कम है तो क्यों है, वेस्ट बंगाल में कम क्यों है, ये आपको पॉइंट्स में मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। अब ये ऑल ओवर इंडिया से बाहर निकलकर हम देखेंगे विश्व में क्या पॉवर्टी का ट्रेंड्स रहा है। इंडिया में हमने देखा था क्या बोलते हैं, क्या जो पॉवर्टी का ट्रेंड था 1973 के बाद से मैंने आपको डाटा दिया था, है ना। अभी देखते हैं कि जो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे क्या है, उसका देखते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2050। मतलब जो पूरे वर्ल्ड का पॉवर्टी का जो ट्रेंड रहा है, उसमें एक डिक्लाइन देखने के लिए हमको मिला है। जितने नंबर ऑफ लोग एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, एक्सट्रीम मतलब कि ना एकदम ज्यादा पुअर, दे डोंट हैव द मीन्स टू सस्टेन देयर लाइफ, तो ऐसे लोगों की मात्रा में कमी आई है ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो, ठीक है। जैसे कि 36% था 1990s में, मतलब कि 1990s में 36% लोग जो हैं ये एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी में रह रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ 10% इन 2015 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10% जो लोग हैं ये एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी के कंडीशन में रह रहे हैं। ऑल्दो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी में सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। देखो इंडिया लेवल पे जो पॉवर्टी में हमको ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, सेम वैसा ही लगभग ग्लोबल लेवल पे भी है। इंडिया में हमने देखा, अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 में
कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पावर्टी ज़्यादा है, ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पावर्टी लेवल कम है, पावर्टी का रिडक्शन रेट वहां पे ज़्यादा, मतलब जल्दी से जो है, जो पावर्टी आपका वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। चाइना तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको एक बात बताऊं, चाइना और इंडिया का लगभग इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसा ही था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, ठीक है। उस टाइम के आसपास चाइना और इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन लगभग एक जैसा था, और इनफैक्ट कुछ समय तक इंडिया इज इकोनॉमिकली एडवांस देन चाइना। 1980s तक समझ लो, 1980s के आसपास तक चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन वाज वर्स्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं, आज के समय में चाइना इज इन अ बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन इंडिया, फार बेटर इकोनॉमिक कंडीशन। हाउ कम? तो ये डाटा ही देख के बता सकते हैं ना। देखो 1981 में, मैं 1980s की बात किया ना, 1980s तक इंडिया इज इंडिया जो है वो आगे था चाइना से इकोनॉमिकली। लेकिन देखो 1981 तक 88.3% पीपल आर लिविंग इन पावर्टी, ठीक है। 1981 के बाद 2008 में देखो क्या ड्रास्टिक रिडक्शन किया, 14.7% पीपल। China is the populated country in the world. Still, they have managed to reduce the poverty to a greater extent. 14.7% people in 2008 or 0.7% people in 2015. The main reason in the reduction of poverty in China is their economic growth. They have done the economic growth in such a manner which contributed in the reduction of poverty in their country. पावर्टी कम होने का सबसे बड़ा रीजन उनके देश में रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, उन्होंने लाया जबरदस्त, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही उम्दा काम किया है। आज आपके घर में एक ना एक से ज़्यादा, एक से लेकर 5 के बीच में ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो चाइना के आपके घर में होंगे ही होंगे। एक्सपोर्ट्स उनके बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ उनका हुआ, पावर्टी लेवल कम हुआ लोगों का, ठीक है। इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, अब साउथ एशिया कंट्री की बात करते हैं तो साउथ एशिया में जो मेन कंट्रीज आपके इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। तो ये साउथ एशिया में देखिए आप जो ट्रेंड है पावर्टी रिडक्शन का, 34% था 2005 के आसपास, 2005 के आसपास 34% था, और 2013 आते आते ये कितना हो गया, 16.2%। स्टिल वी आर लैकिंग फ्रॉम चाइना। देखिए चाइना में कितना है, चाइना में तो ये इधर चाइना में कितना है, 0.7%, ठीक है। और इंडिया की बात की जाए, क्योंकि इंडिया तो साउथ एशिया में ही आ गया ना, 16.2% लोग हैं जो पावर्टी के नीचे हैं। नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, ओके। सब सहारन कंट्री, ये जो रीजन है अफ्रीका का, जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मैप उठा के देखना, वर्ल्ड मैप देखते रहना है ना आपको, कौन सा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है ये पता होना चाहिए। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तो आपको दिमाग में एशिया आना चाहिए। एशिया का भी सदर्न इलाका, साउथ एशिया। अफ्रीका बोलूँ तो अफ्रीका में दिमाग जाना चाहिए। तो अफ्रीका में जो सब सहारन अफ्रीका है, जो सहारा रेगिस्तान का इलाका है अफ्रीका में, लोकेट करना कहाँ पे है, वहां के जो कंट्रीज है वहां पे इकोनॉमिक पावर्टी ज्यादा है। 51% था 2005 में, डिक्लाइन होकर 2015 तक 10% का मात्र डिक्लाइन दिखा गया, 41%। कारण आपको मैं बता दूं, अफ्रीका इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट विच इज गिफ्टेड विथ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का भंडार है अफ्रीका में, लेकिन उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। देखो वहां पे काफी ज्यादा वॉर बहुत चल रहा है अभी आज के डेट में, सिविल वॉर, कंट्रीज में सिविल वॉर काफी चल रहा है। वहां पे लोगों के मतलब जो भी बीमारियां होती है, जैसे कि कोरोना, तो आपने नाम सुना, कोरोना से पहले कुछ बीमारियां पर्टिकुलरली अफ्रीका में ही जनरेट होती थी, जैसे कि एड्स एक बीमारी है, जीका वायरस, ठीक है। ये सब बीमारियों का गढ़ रहा है अफ्रीका किसी कारणवश।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत ही डीस्टेबलाइज टाइप का रीजन रहा है अफ्रीका, पॉलिटिकली, सोशली, इसलिए वहां पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने का चांस नहीं था, इसलिए वहां पे पॉवर्टी ज़्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ से ही अपन देखो रिलेट करेंगे सीधा पॉवर्टी को, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, कंपेरेटिवली पॉवर्टी वहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लैटिन अमेरिका की बात करें। अब ये लैटिन अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट है भाई? हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। अमेरिका दो है ना कॉन्टिनेंट, एक नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको उधर आ जाएगा, कनाडा। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब क्या है? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यहाँ पे देखा पॉवर्टी रेशियो 10% था 2005 में, 2015 तक आके रिड्यूस हो गया 4%। तो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जिसमें सबसे बेहतरीन डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिला चाइना में। चाइना के अलावा साउथ कोरिया है एक, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया। जापान तो खैर इकोनॉमिकली एडवांस था एशिया में, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया एशिया में वो जापान में ही आया। तो जापान में कंपैरेटिवली कम है पॉवर्टी, बहुत कम है पॉवर्टी, मतलब ऐसे कैसे बता दूं मैं, बहुत मतलब कम समझ लो, जैसा आपका चाइना से भी अच्छा वहां पे है, मतलब लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ओके, कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि रसिया। ये जो रसिया जो है ना, रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री रहा है। क्वेश्चन आया था ना तुम लोगों के अभी एग्जाम में, हाफ ईयरली में, अक्टूबर रिवोल्यूशन के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी रसिया में आया पहले, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, लोग पॉवर्टी में ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, लेकिन कुछ कारणों से रसिया का इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा कम हुआ अभी 1980s 1990s के कारण। तो कुछ वहाँ पे पॉवर्टी का इफेक्ट पड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। ओके, तो ये आपका ग्लोबल इकोनॉमिक पॉवर्टी का ट्रेंड है। इसमें आपको बताना है कि अलग अलग रीजन्स में क्या पॉवर्टी का ट्रेंड चल रहा है ना। तो आप स्टार्ट करोगे चाइना से, फिर उसके बाद साउथ एशिया का बताएंगे, सब सहारन अफ्रीका का बताएंगे, लैटिन अमेरिका का बताएंगे, यूरोप का कोई कंट्री मिलेगा नहीं, सब वहाँ पे एडवांस, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का भी नहीं मिलेगा। तो जिनका है उनका आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। मतलब कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी रहा है, पॉलिसी रहा है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। अब ये पॉवर्टी एलिविएशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है लोगों को गरीबी से खींच कर बाहर निकालना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे पॉवर्टी एलिविएशन हो रहा है, पॉवर्टी से लोग ऊपर उठ रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ने क्या ऐसा काम किया है, ये हमको बताना है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन टू प्लैंक्स। दो टाइप का स्ट्रेटजी हमारे गवर्नमेंट ने अपनाया है इंडिया के केस में। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। मोर इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, लेस इज द पॉवर्टी, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब कि कुछ ऐसा हमको मेजर्स लेना पड़ेगा जो डायरेक्टली सीधा जिसके कारण पॉवर्टी हो रहा है उस पर जाके सीधा अटैक करे। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि उसमें टाइम लगता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पॉवर्टी पे, ठीक है। आपने अभी के समय में हम वी आर स्टिल यू नो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले इंप्रूव करो। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के बाद आपने क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है इंडिया में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका पॉवर्टी के ऊपर। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स है इनको हमको अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अलग से है ना, 1 और 2, कि किस तरीके से हमको एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स।
अब उसके बाद 3 पॉइंट में देखते हैं अपन क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है। द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी jumped from average of 3.5% a year in 1970s to about 6% during 1980s and 1990s। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का बढ़ा तो है, 3.5% था 1970s के टाइम, एक साल का ग्रोथ, ठीक है 3.5%, तो 3.5% से इंक्रीज तो हुआ है, 6% तक पहुंचा है 1980s 1990s पे, लेकिन यार ये ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ा नहीं ज्यादा इकोनॉमिक को, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। कारण इसका बहुत सारा है, लेकिन मेन कारण मैं इसका ये बताऊंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। पॉवर्टी के रीजन में हमने पढ़ा था ना, लो इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विथ हाई पॉपुलेशन। आज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 6 economies of the world, one of the top 6 economies of the world। लेकिन पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक आदमी का जो इनकम हो रहा है हमारे कंट्री में वो बहुत कम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज लो, दैट्स व्हाई वी आर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट द पुअरेस्ट बट द पुअर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ इंडिया में, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ा पॉवर्टी के रिडक्शन में। पॉवर्टी के रिडक्शन में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट उतना पड़ा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि हमको टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, हमको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पॉवर्टी एलिवेशन पे काम नहीं हुआ इंडिया में, देयर इज अ सिग्निफिकेंट वर्क व्हिच हैज बीन डन एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये सिग्निफिकेंट एक पॉलिसी आया था, इसको तो कानून के रूप में अप्लाई किया गया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत क्या है कि रूरल एरियाज में जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड किया गया। और अभी भी है कई स्टेट में, मतलब मोस्टली स्टेट्स में तो चल ही रहा है। इस पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को गारंटीड जॉब्स प्रोवाइड करती है, जो लोग इकोनॉमिकली पुअर लोग हैं उनको, ठीक है, उसके बदले में उनको पर डे का कुछ उनको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। कई स्टेट्स में तो 100 डेज से ज़्यादा भी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इट गिव्स गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर्स स्पेशली। जैसे कि गांव में कहीं कुछ कुआं बन रहा है या खेती में फार्म लेबरर्स को भी, ठीक है, ऐसा वर्क है, इस वर्क से लोगों को जोड़ा जाता है रूरल एरियाज में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, जहां पे रूरल एरियाज मतलब गांव के इलाके और जो स्मॉल टाउन्स, छोटे जो शहर हैं, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लोग को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका कोशिश किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि छोटा मोटा कोई बिजनेस उनको खड़ा करके दे दिए या उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प कर दिए। जैसे आज के समय में एक मुद्रा योजना चल रहा है, ठीक है, ये जो करंट एनडीए गवर्नमेंट 2014 में इलेक्ट होकर आई थी, इसका एक ये फ्लैगशिप स्कीम था मुद्रा योजना। अब ये मुद्रा योजना के तहत क्या होता था कि लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता था। छोटा मोटा बिजनेस किसी को अगर स्टार्ट करना है, पोल्ट्री से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्म जैसा होता है ना, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, या घर में कुछ जैसे छोटा मोटा से जो लेडीज लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं, तो ये सब चीज के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड अमाउंट में लोन मिलता है, जिसका इंटरेस्ट बहुत कम, क्योंकि लोन लोगे तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट बहुत कम रखता है गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स में, ठीक है।
उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी लगभग इसी के जैसा ही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के जैसा ही है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता था लोगों को रूरल और स्मॉल टाउन एरियाज में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 जो है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को असिस्टेंस दिया जाता था कि आप अपने स्टेट में बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराइए। उसके बदले में देखो, स्टेट का खुद का रिसोर्सेज होता है, स्टेट के पास खुद का इनकम होता है जिससे वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी कंसिडरेबल अमाउंट में असिस्टेंस स्टेट्स को दिया जाता है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ड्यूटी है लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था, जो बेसिक आप सर्विसेज प्रोवाइड कराइए अपने स्टेट में, जैसे कि क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो ये सब जो है आपका गवर्नमेंट के एंटी पावर्टी मेजर्स हैं, जो पावर्टी एलिविएशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा एंटी पावर्टी मेजर्स। तो ये 8 क्वेश्चन 6, 7, 8 का मैंने डिस्कशन किया है, जिसमें से हमने पावर्टी एलिविएशन देखा, उसके बाद ग्लोबल पावर्टी ट्रेंड्स देखा, ग्लोबल पावर्टी ट्रेंड्स के बाद जो डिस्पैरिटी है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑन पावर्टी इन इंडिया, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके डाउट को एंटरटेन करूंगा। तो ये 8 जो क्वेश्चंस है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 डन है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को होमवर्क करना है, इसको आप लोग करेंगे। Okay, so thank you very much, this is all from my side for this chapter, and thank you very much once again, have an awesome day.